پتہ ہی نہیں لگتا بندہ خوش ہے یا اداس. اگر میں نے تمہیں اس گھر سے ایک مرتبہ پھر نہ نکلوا دیا، نام بھی لیلا نہیں. کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ کو معلوم ہی نہیں ہے. دعا رکھو، سب کچھ آپ کے نام ہو چکا ہے. ہم جو کر سکیں گے کریں گے. تمہیں کتنی طاقت ہوتی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کرچی کرچی ہو گیا جی. پاپا ہے، یہ آپ ہے، یہ میں ہوں، اور یہ دادو. میں نے ایک فیملی پورٹریٹ بنایا. اس سے گانا گوانے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچ لیں. میں نے کہا تھا نا نوشاد صاحب آپ کو. دیکھا کیا نکلا اس کا نتیجہ. یہ ماموں کو کیا ہو گیا؟ کون سی والی ماما؟ آپ میرے ساتھ کھیلو گے؟ جی. کیا ہوا ممی؟ تم نیلم سے پوچھو. تمہیں نیلو، تم نے دلشاد کا سانگ وہ بھی لیلا کے ہوتے ہوئے بارہ تم نے مجھے کہا تو میں اس گھر سے نہیں گھر واپس چلی جاؤں گی US. اگر تم چاہتے ہو کہ ٹھیک رہے تو لیلا جانا ہوگا، ورنہ جو بھی ہوگا تم خود ہوگے. ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والے قسط میں کہانی ایک جذباتی اور گہرے موڑ لے جانے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دلشاد جو ایک مشہور سنگر بن چکا ہے اور اس کے قریبی دوست اور جسے وہ باس کہتا ہے اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں کیونکہ نشاد کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے. ہاسپٹل کے کارنر میں دلشاد تنہا بیٹھا ہوتا ہے، چہرہ فکر اور بے چینی سے بھرا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں نشاد کی باتیں گھومنے لگتی ہیں کیونکہ نشاد نے اسے زندگی کے مطابق ایک بہت گہری سمجھا دیتی ہے. دلشاد کو نشاد کے الفاظ یاد آتے ہیں جب وہ کہا کرتا تھا کہ اکیلا پن بھی ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، انسان خود نہیں جان پاتا کہ وہ اندر سے خوش اور یا اداس ہے. ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے دلشاد آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس وقت اس کے دکھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں. اس لمحے ڈاکٹر باہر نکلتا ہے. دلشاد فوراً اٹھ کر پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں. ڈاکٹر حیرانی سے دلشاد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مطلب آپ کو اب کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ سن کر دلشاد چہرہ بالکل بدل جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ نشاد ایک سنگین اور خطرناک بیماری میں مبتلا تھا جو اس نے جان بوجھ کر دلشاد سے چھپائی کر رکھی تھی. آج پہلی بار دلشاد کو اس سچ کی علم ہوتا ہے. وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. دوسری طرف نیلم کے گھر واپس آ جانے سے گھر کا ماحول خوشی سے بھر جاتا ہے. سنی اور وجدان بہت خوش نظر آتے ہیں. تینوں لاؤن میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھول رہے ہوتے ہیں. اوپر تیسرے پر کھڑی لائلا یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے دل میں نیلم کے لیے جلن اور نفرت بھری ہوتی ہے. لائلا کو لگتا ہے کہ نیلم نے اس سے اس کا شوہر اور اس کی باتیں چھین لی ہیں، اس لیے یہ غصے اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے. جب نیلم اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو لائلا اس کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر اس بار بھی میں تمہیں اس گھر سے باہر نہ نکلوا سکی تو پھر میرا نام لائلا نہیں. نیلم اور اعتماد لہجے میں جواب دیتی ہے کہ وہ آپ جو مرضی کر سکے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں حد پار کر سکتی ہوں. یہ بات سن کر لائلا کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ
बगैर कुछ कहे वजह से चली जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में दिलशाद की जंग हार जाता है। उसकी मौत दिलशाद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। कुछ अरसे बाद दिलशाद अपने घर में तन्हा बैठा होता है कि दिलशाद का वकील उससे मिलने आ जाता है। उसे बताता है कि निशाद ने अपनी सारी जायदाद दिलशाद के नाम कर दी है। यह सुनकर दिलशाद हैरत और उलझन में डूब जाता है। आगे चलकर दिलशाद की मुलाकात दोबारा वजदान से होती है। गुफ्तगू गुफ्तगू के दौरान वजदान नीलो के जिक्र कर देता है। दिलशाद अचानक हरियाणी से कहता है कि मेरी जिंदगी का नाम भी नीलो ही है। यह सुनकर वजदान सख्त हैरान हो जाता है और दिलशाद को गौर से देखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पड़ता है कि वजदान और दिलशाद कभी ये सच जान पाएंगे कि जिस नीलम का जिक्र वो अलग अलग तौर पर कर रहे हैं, असल में वो दोनों के लिए एक हरियाणी है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाले किस्त में कहानी एक जज्बाती और गहरे मोड़ ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है। चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं, क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक अजीब सी हालत हो जाती है। इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो अंदर से खुश और या उदास है। इन बातों को याद करते हुए दिलशाद आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल पर बोझ महसूस होता है। उस वक्त उसके दुख और भी गहरे हो जाते हैं। इस लम्हे डॉक्टर बाहर निकलता है। दिलशाद फौरन उठकर पूछता है कि सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। डॉक्टर हरियाणी से दिलशाद को देखता है और कहता है, मतलब आपको अब कुछ पता ही नहीं था? ये सुनकर दिलशाद चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि निशाद एक संगीन और खतरनाक बीमारी में मुतलबा था, जो उसने जानबूझकर दिलशाद से छुपाई कर रखी थी। आज पहली बार दिलशाद को इस सच की इल्म होता है। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ नीलम के घर वापस आ जाने से घर का माहौल खुशी से भर जाता है। सनी और वजदान बहुत खुश नजर आते हैं। तीनों लॉन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और हंस भूल रहे होते हैं। ऊपर तीसरे पर खड़ी लायला ये मंजर देख रही होती है। उसके दिल में नीलम के लिए जलन और नफरत भरी होती है। लायला को लगता है कि नीलम ने उससे उसका शौहर और उसकी बातें छीन ली हैं, इसलिए ये भी भदा इसलिए गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है।
जब नीलम अंदर की तरफ जा रही होती हैं तो लायला उसके सामने आ जाती है। उसके अल्फाज में कहती है कि अगर अगर इस बार भी मैं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकलवा सकी तो फिर मेरा नाम लायला नहीं। नीलम और एहतमाद लहजे में जवाब देती है कि वो आप जो मर्जी कर सके। अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए मैं हद पार कर सकती हूँ। ये बात सुनकर लायला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो बगैर कुछ कहे वजह से चली जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में दिलशाद की जंग हार जाता है। उसकी मौत दिलशाद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। कुछ अरसे बाद दिलशाद अपने घर में तन्हा बैठा होता है कि दिलशाद का वकील उससे मिलने आ जाता है। उसे बताता है कि निशाद ने अपनी सारी जायदाद दिलशाद के नाम कर दी है। यह सुनकर दिलशाद हैरत और उलझन में डूब जाता है। आगे चलकर दिलशाद की मुलाकात दोबारा वजदान से होती है। गुफ्तगू के दौरान वजदान नीलो के जिक्र कर देता है। दिलशाद अचानक हरियाणी से कहता है कि मेरी जिंदगी का नाम भी नीलो ही है। यह सुनकर वजदान सख्त हैरान हो जाता है और दिलशाद को गौर से देखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पड़ता है कि वजदान और दिलशाद कभी ये सच जान पाएंगे कि जिस नीलम का जिक्र वो अलग अलग तौर पर कर रहे हैं असल में वो दोनों के लिए एक हरियाणी है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाले किस्त में कहानी एक जज्बाती और गहरे मोड़ ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है। चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक अजीब सी हालत हो जाती है। इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो अंदर से खुश और या उदास है। इन बातों को याद करते हुए दिलशाद आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल पर बोझ महसूस होता है। उस वक्त उसके दुख और भी गहरे हो जाते हैं। इस लम्हे डॉक्टर बाहर निकलता है। दिलशाद फौरन उठकर पूछता है कि सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। डॉक्टर हरियाणी से दिलशाद को देखता है और कहता है मतलब आपको अब कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर दिलशाद चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि निशाद एक संगीन और खतरनाक बीमारी में मुतलबा था जो उसने जानबूझकर दिलशाद से छुपाई कर रखी थी। आज पहली बार दिलशाद को इस सच की इल्म होता है। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ नीलम के घर वापस आ जाने से घर का माहौल खुशी से भर जाता है।
सनी और वजदान बहुत खुश नजर आते हैं। तीनों लाउन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और हंस भूल रहे होते हैं। ऊपर तीसरे पर खड़ी लायला ये मंजर देख रही होती है। उसके दिल में नीलम के लिए जलन और नफरत भरी होती है। लायला को लगता है कि नीलम ने उससे उसका शौहर और उसकी बातें छीन ली हैं, इसलिए ये गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। जब नीलम अंदर की तरफ जा रही होती है तो लायला उसके सामने आ जाती है। उसके अल्फाज में कहती है कि अगर इस बार भी मैं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकलवा सकी तो फिर मेरा नाम लायला नहीं। नीलम और एहतमाद लहजे में जवाब देती है कि वो आप जो मर्जी कर सके। अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए मैं हद पार कर सकती हूँ। ये बात सुनकर लायला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो बगैर कुछ कहे वजह से चली जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में दिलशाद की जंग हार जाता है। उसकी मौत दिलशाद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। कुछ अरसे बाद दिलशाद अपने घर में तन्हा बैठा होता है कि दिलशाद का वकील उससे मिलने आ जाता है। उसे बताता है कि निशाद ने अपनी सारी जायदाद दिलशाद के नाम कर दी है। यह सुनकर दिलशाद हैरत और उलझन में डूब जाता है। आगे चलकर दिलशाद की मुलाकात दोबारा वजदान से होती है। गुफ्तगू के दौरान वजदान नीलो के जिक्र कर देता है। दिलशाद अचानक हरियाणी से कहता है कि मेरी जिंदगी का नाम भी नीलो ही है। यह सुनकर वजदान सख्त हैरान हो जाता है और दिलशाद को गौर से देखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पड़ता है कि वजदान और दिलशाद कभी ये सच जान पाएंगे कि जिस नीलम का जिक्र वो अलग अलग तौर पर कर रहे हैं, असल में वो दोनों के लिए एक हरियाणी है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाले किस्त में कहानी एक जज्बाती और गहरे मोड़ ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है। चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं, क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक अजीब सी हालत हो जाती है। इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो अंदर से खुश और या उदास है। इन बातों को याद करते हुए दिलशाद आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल पर बोझ महसूस होता है। उस वक्त उसके दुख और भी गहरे हो जाते हैं। इस लम्हे डॉक्टर बाहर निकलता है। दिलशाद फौरन उठकर पूछता है कि सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। डॉक्टर हैरानी से दिलशाद को देखता है और कहता है, मतलब आपको अब कुछ पता ही नहीं था
ये सुनकर दिलशाद चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि निशाद एक संगीन और खतरनाक बीमारी में मुतलबा था जो उसने जानबूझकर दिलशाद से छुपाई कर रखी थी। आज पहली बार दिलशाद को इस सच की इल्म होता है। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ नीलम के घर वापस आ जाने से घर का माहौल खुशी से भर जाता है। सनी और वजदान बहुत खुश नजर आते हैं। तीनों लॉन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और हंस भूल रहे होते हैं। ऊपर तीसरे पर खड़ी लायला ये मंजर देख रही होती है। उसके दिल में नीलम के लिए जलन और नफरत भरी होती है। लायला को लगता है कि नीलम ने उससे उसका शौहर और उसकी बातें छीन ली हैं, इसलिए ये गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। जब नीलम अंदर की तरफ जा रही होती है तो लायला उसके सामने आ जाती है। उसके अल्फाज में कहती है कि अगर इस बार भी मैं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकलवा सकी तो फिर मेरा नाम लायला नहीं। नीलम और एहतमाद लहजे में जवाब देती है कि वो आप जो मर्जी कर सके। अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए मैं हद पार कर सकती हूँ। ये बात सुनकर लायला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो बगैर कुछ कहे वजह से चली जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में दिलशाद की जंग हार जाता है। उसकी मौत दिलशाद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। कुछ अरसे बाद दिलशाद अपने घर में तन्हा बैठा होता है कि दिलशाद का वकील उससे मिलने आ जाता है। उसे बताता है कि निशाद ने अपनी सारी जायदाद दिलशाद के नाम कर दी है। यह सुनकर दिलशाद हैरत और उलझन में डूब जाता है। आगे चलकर दिलशाद की मुलाकात दोबारा वजदान से होती है। गुफ्तगू के दौरान वजदान नीलो के जिक्र कर देता है। दिलशाद अचानक हरियाणी से कहता है कि मेरी जिंदगी का नाम भी नीलो ही है। यह सुनकर वजदान सख्त हैरान हो जाता है और दिलशाद को गौर से देखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पड़ता है कि वजदान और दिलशाद कभी ये सच जान पाएंगे कि जिस नीलम का जिक्र वो अलग अलग तौर पर कर रहे हैं, असल में वो दोनों के लिए एक हरियाणी है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाले किस्त में कहानी एक जज्बाती और गहरे मोड़ ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है। चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक
عجیب سی حالت ہو جاتی ہے۔ انسان خود نہیں جان پاتا کہ وہ اندر سے خوش اور یا اداس ہے۔ ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے دلشاد آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے دکھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے ڈاکٹر باہر نکلتا ہے۔ دلشاد فوراً اٹھ کر پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر حیرانی سے دلشاد کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مطلب آپ کو اب کچھ پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ سن کر دلشاد چہرہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دلشاد ایک سنگین اور خطرناک بیماری میں مبتلا تھا جو اس نے جان بوجھ کر دلشاد سے چھپائی کر رکھی تھی۔ آج پہلی بار دلشاد کو اس سچ کی علم ہوتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف نیلم کے گھر واپس آ جانے سے گھر کا ماحول خوشی سے بھر جاتا ہے۔ سنی اور وجدان بہت خوش نظر آتے ہیں۔ تینوں لاؤن میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھول رہے ہوتے ہیں۔ اوپر تیسرے پر کھڑی لائلا یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں نیلم کے لیے جلن اور نفرت بھری ہوتی ہے۔ لائلا کو لگتا ہے کہ نیلم نے اس سے اس کا شوہر اور اس کی باتیں چھین لی ہیں، اس لیے یہ غصے اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب نیلم اندر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو لائلا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر اس بار بھی میں تمہیں اس گھر سے باہر نہ نکلوا سکی تو پھر میرا نام لائلا نہیں۔ نیلم اور احتماد لہجے میں جواب دیتی ہے کہ وہ آپ جو مرضی کر سکے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے میں حد پار کر سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر لائلا کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بغیر کچھ کہے وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ ادھر ہاسپٹل میں دلشاد کی جنگ ہار جاتا ہے۔ اس کی موت دلشاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد دلشاد اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے کہ دلشاد کا وکیل اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ نشاد نے اپنی ساری جائیداد دلشاد کے نام کر دی ہے۔ یہ سن کر دلشاد حیرت اور الجھن میں ڈوب جاتا ہے۔ آگے چل کر دلشاد کی ملاقات دوبارہ وجدان سے ہوتی ہے۔ گفتگو کے دوران وجدان نیلو کے ذکر کر دیتا ہے۔ دلشاد اچانک حیرانی سے کہتا ہے کہ میری زندگی کا نام بھی نیلو ہی ہے۔ یہ سن کر وجدان سخت حیران ہو جاتا ہے اور دلشاد کو غور سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال پڑتا ہے کہ وجدان اور دلشاد کبھی یہ سچ جان پائیں گے کہ جس نیلم کا ذکر وہ الگ الگ طور پر کر رہے ہیں، اصل میں وہ دونوں کے لیے ایک حیرانی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل معصوم کی آنے والی قسط میں کہانی ایک جذباتی اور گہرے موڑ لے جانے والی ہے۔
हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है, चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक अजीब सी हालत हो जाती है, इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो अंदर से खुश और या उदास है। इन बातों को याद करते हुए दिलशाद आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल पर बोझ महसूस होता है। उस वक्त उसके दुख और भी गहरे हो जाते हैं। इस लम्हे डॉक्टर बाहर निकलता है। दिलशाद फौरन उठकर पूछता है कि सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। डॉक्टर हैरानी से दिलशाद को देखता है और कहता है, मतलब आपको अब कुछ पता ही नहीं था? ये सुनकर दिलशाद चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि निशाद एक संगीन और खतरनाक बीमारी में मुतलबा था जो उसने जानबूझकर दिलशाद से छुपाई कर रखी थी। आज पहली बार दिलशाद को इस सच की इल्म होता है। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ नीलम के घर वापस आ जाने से घर का माहौल खुशी से भर जाता है। सनी और वजदान बहुत खुश नजर आते हैं। तीनों लॉन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और हंस भूल रहे होते हैं। ऊपर तीसरे पर खड़ी लायला ये मंजर देख रही होती है। उसके दिल में नीलम के लिए जलन और नफरत भरी होती है। लायला को लगता है कि नीलम ने उससे उसका शौहर और उसकी बातें छीन ली हैं, इसलिए ये गुस्से और भी भड़क इसलिए गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। जब नीलम अंदर की तरफ जा रही होती है तो लायला उसके सामने आ जाती है। उसके अल्फाज में कहती है कि अगर इस बार भी मैं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकलवा सकी तो फिर मेरा नाम लायला नहीं। नीलम और एहतमाद लहजे में जवाब देती है कि वो आप जो मर्जी कर सके। अपने आप को और अपने घर को बचाने के लिए मैं हद पार कर सकती हूँ। ये बात सुनकर लायला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो बगैर कुछ कहे वजह से चली जाती हैं। इधर हॉस्पिटल में दिलशाद की जंग हार जाता है। उसकी मौत दिलशाद के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। कुछ अरसे बाद दिलशाद अपने घर में तन्हा बैठा होता है कि दिलशाद का वकील उससे मिलने आ जाता है। उसे बताता है कि निशाद ने अपनी सारी जायदाद दिलशाद के नाम कर दी है। यह सुनकर दिलशाद हैरत और उलझन में डूब जाता है। आगे चलकर दिलशाद की मुलाकात दोबारा वजदान से होती है। गुफ्तगू के दौरान वजदान नीलो के जिक्र कर देता है। दिलशाद अचानक हरियाणी से कहता है कि मेरी जिंदगी का नाम भी नीलो ही है। यह सुनकर वजदान सख्त
हैरान हो जाता है और दिलशाद को गौर से देखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पड़ता है कि वजदान और दिलशाद कभी ये सच जान पाएंगे कि जिस नीलम का जिक्र वो अलग अलग तौर पर कर रहे हैं, असल में वो दोनों के लिए एक हरियाणी है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाले किस्त में कहानी एक जज्बाती और गहरे मोड़ ले जाने वाली है। हम देखते हैं कि दिलशाद जो एक मशहूर सिंगर बन चुका है और उसके करीबी दोस्त और जिसे वो बॉस कहता है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि निशाद की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। हॉस्पिटल के कॉर्नर में दिलशाद तन्हा बैठा होता है, चेहरा फिक्र और बेचैनी से भरा होता है। उसके जहन में निशाद की बातें घूमने लगती हैं क्योंकि निशाद ने उसे जिंदगी की मुताबिक एक बहुत गहरी समझा देती है। दिलशाद को निशाद के अल्फाज याद आते हैं जब वो कहा करता था कि अकेलापन भी एक अजीब सी हालत हो जाती है, इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो अंदर से खुश और या उदास है। इन बातों को याद करते हुए दिलशाद आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल पर बोझ महसूस होता है। उस वक्त उसके दुख और भी गहरे हो जाते हैं। इस लम्हे डॉक्टर बाहर निकलता है। दिलशाद फौरन उठकर पूछता है कि सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। डॉक्टर हैरानी से दिलशाद को देखता है और कहता है, मतलब आपको अब कुछ पता ही नहीं था? ये सुनकर दिलशाद चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसे मालूम होता है कि निशाद एक संगीन और खतरनाक बीमारी में मुतलबा था जो उसने जानबूझकर दिलशाद से छुपाई कर रखी थी। आज पहली बार दिलशाद को इस सच की इल्म होता है। वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ नीलम के घर वापस आ जाने से घर का माहौल खुशी से भर जाता है। सनी और वजदान बहुत खुश नजर आते हैं। तीनों लॉन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और हंस बोल रहे